Hello dear kids, this is the part 3rd of lesson Sahil and his family. In this we will do some of your book exercises. See page number 14. This question, fill in the blanks. ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ाया था. This exercise you have to do it in your classwork also, in your English copy also you have to note it down, this exercise. And then see the next page of your book, page number 15. Find the following words from the lesson and circle the correct spelling. These are the following words in which you have to circle the correct spelling. This is also your class work. ये भी आपका class work है जो आपको आपकी कॉपी में करना है. Now you have to circle the correct spelling. STUDY study, STADY steady. The correct spelling of study is this one. Circle the correct spelling, study. FATHER feather, FATHER father. कौन सी सही स्पेलिंग है? This one. So circle this. TEACHER teacher, TICHER teacher. तो which is the correct one? Teacher. COME come, CUM come. COME is the right spelling. अब इन दोनों में से बताओ, HUME हूम और HOME होम. होम बोलते हो कि हूम? होम बोलते हो ना. So you will circle the correct spelling of home. These words I have also covered in your hard words. ये words मैम ने आपके hard words में भी दिए. So do learn these words. And then see the next exercise. Read aloud these words. E vowel words हैं. ये हमने पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं इन योर इंग्लिश ग्रामर वीडियो. ई वोवल वर्ड्स, दिस आर द सेम वर्ड्स. दिस इज़ योर होमवर्क पोर्शन इन विच यू हैव टू सर्कल द वर्ड्स दैट हैव शॉर्ट ई साउंड. जिसमें ई साउंड आ रहा है यू हैव टू सर्कल दोज वर्ड्स. This is your homework portion because in classwork we have already done with so many exercises of vowel E sound words. This is the grammar portion exercises of your book. Pronoun. Pronoun पे मैंने आपको पहले भी वीडियो सेंड किया है इंग्लिश ग्रामर का. Now these are the exercises of pronoun of your book. Circle the pronoun in the given option. One has been done for you. Like this one has been done for you as you can see. बहुत वीडियो में बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवा दी है प्रोनाउन की. एंड इन होमवर्क ऑल्सो आई प्रोवाइडेड सो मैनी एक्सरसाइजेज ऑफ दिस. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ दिस प्रोनाउन. सो चलो लेट अस डू दिस एक्सरसाइज. आई लिव इन अ हाउस. हेयर विच प्रोनाउन इज हेयर? हेयर आई इज अ प्रोनाउन. She has a bed. Here, which is the pronoun? She. He likes to water the plants. Circle the pronoun he. It is a nice garden. It is a pronoun. You have a pretty room. Here, which pronoun is used? You. You is a pronoun. See the next page. We are going to the market. Here, we is a pronoun. They are playing. They is a pronoun. He is reading a book. In this sentence, he is a pronoun. I am going to home. अब यहाँ पे कौन सा pronoun है? Home है? No. I है. I is the pronoun. This is her bag. In this, her is a pronoun. Now see this second question. Write pronoun for the colored words. Choose from the option given. This pronoun exercise you have to do it in your homework in this book only. आप इस बुक में ही करेंगे बिकॉज इससे रिलेटेड मैम ने वीडियो में भी एक एक्सरसाइज करवाई थी. सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन बुक ओनली. सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ पंचुएशन. पंचुएशंस क्या होते हैं? हम हमेशा जब भी कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं तो वे ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और हमेशा एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद वी विल पुट फुल स्टॉप. और अगर वो क्वेश्चन है तो
हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, मैम ने क्वेश्चन पूछा ना कि आपका नाम क्या है, तो क्वेश्चन मार्क, माय नेम इज़ सो एंड सो, जो भी आपका नाम है तो हम लगाते हैं फुल स्टॉप, लाइक सेम लाइक दैट। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, और सिंपल नॉर्मल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। जब भी कोई नाम आता है तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई प्लेस हो या किसी का नाम हो। जैसे कि आपका नाम है अनाया, तो यू ऑलवेज राइट विथ कैपिटल ए। द स्पेलिंग ऑफ अनाया आप हमेशा स्टार्ट करेंगे विथ कैपिटल ए। और कोई भी प्लेस हो, सागर, दिल्ली, इंडिया, यू ऑलवेज फॉर द प्लेस ऑल्सो यू ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर। सी फॉर एग्जाम्पल, सी द फर्स्ट वन, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन। ये हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसे हमें रीराइट करना है विथ करेक्ट। हमें ये गलत तरीके से लिखे हुए हमें इसे सही करना है। दिस इज़ माई बुक, अब ये बोला है दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, ना इसमें फुल स्टॉप है, ना कुछ है क्वेश्चन मार्क, ना कैपिटल यूज़ किया है, कुछ नहीं। पर पंक्चुएशन में हम तो कैपिटल यूज़ करते हैं, तो ऑलवेज स्टार्ट फर्स्ट, whenever you will write always start with capital। तो यहाँ पे स्मॉल टी है तो you will write capital T। क्यों? क्योंकि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से। दिस इज़ माई बुक, और हमेशा एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट फुल स्टॉप, पर इधर कोई फुल स्टॉप नहीं है तो इन आंसर यू विल पुट फुल स्टॉप। द नेक्स्ट वन बी, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। इधर क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और स्टार्टिंग लेटर विल बी कैपिटल। स्टार्टिंग का W यहाँ हो जाएगा कैपिटल, व्हाट इज़ योर नेम, और आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा है ना कि आपका नाम क्या है। नाउ सी द थर्ड वन, सी द नेम ऑफ माई पेट डॉग इज़ बिम्बो, मेरी डॉग, जो मेरा पेट डॉग है उसका नाम क्या है, बिम्बो। द का टी कैपिटल हो जाएगा, वाई कैपिटल, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ योर आंसर। THE, द नेम ऑफ माई पेट डॉग इज़ बिम्बो का बी भी क्या होगा, कैपिटल। वाई? क्योंकि ये डॉग का नाम है। जब भी कोई नेम हो, प्लेस हो, तो उसका क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल। सी द फोर्थ वन, आई गो टू स्कूल, हेयर आई विल बी कैपिटल। वाई? बिकॉज इट इज़ द स्टार्टिंग लेटर। आई गो टू स्कूल, एंड स्कूल का S भी कैपिटल। वाई? बिकॉज स्कूल इज़ अ प्लेस, स्कूल एक प्लेस है, तो S क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल, एंड एट द एंड फुल स्टॉप। I hope you all got it this punctuations now। अब ये 4 सेंटेंस और दिए हैं जो आपको आपके होमवर्क में करने हैं। मैम ने आपको 4 बताए कि क्या होते हैं, कैसे कैपिटल स्टार्ट करते हैं, कब नेम और प्लेस के लिए कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, कब क्वेश्चन मार्क और कब फुल स्टॉप लगाते हैं, इसे हम कहते हैं पंक्चुएशन। अब ये 4 सेंटेंस यू विल राइट डाउन इट इन योर बुक एंड देन इन योर कॉपी। ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं पहले आप अपनी बुक में करेंगे ये पंक्चुएशन वाली, देन इन योर कॉपी। In next video we will do some of the exercise of your workbook, of your English workbook. Till then, bye bye.